Hello student, myself Anar Shah from Marathwada Institute of Technology, Polytechnic, Aurangabad. Civil Engineering Department welcome all of you to the new academic year 2020-21, Part 1. In this semester, we will study about building construction. Now, this is the very basic subject. Please listen to me carefully. Building construction is very basic subject. Building construction course code is 22304. Your semester CE3I, class CE3I, semester 3rd, academic year 2020-21. Now, program name is Civil Engineering Program Group. Means you all in 3rd semester, right? Second semester आपका हो गया, first and second semester हो गया. Now you are in 3rd semester. What is basically in 3rd semester in civil engineering? In 3rd semester you have 5 subject. Which 5 subject? Do you know all? Advanced survey, building construction, highway engineering, concrete technology, and mechanics of structure. These 5 basic subjects in your 3rd semester. Now, our subject is building construction. Okay. Now, in building construction, what are the basic? This is very basic subject. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप ये सीखेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स, all the methods of construction of buildings, many different methods for constructing a building. Okay, so first of all we will see course outcomes in building construction. Now, course outcomes of BCO. There will be 6 course outcomes of BCO. First is identify components of building structures. The second one is propose suitable type of foundation for building structures. Third one is select suitable type of masonry for building structures. Fourth one is propose relevant means of communication for different types of buildings. Fifth is select the relevant material for finishing works. And the last one is execute safe practices in building construction activities. Course outcomes is already in your syllabus first page. फर्स्ट पेज का BCO का जो फर्स्ट पेज आप देखेंगे सिलेबस का, उसमें ऑलरेडी देयर आर गिवन. Okay, our next slide is teaching scheme, teaching and examination scheme. In BCO there are theory paper as well practical. Practical means what? जो आप प्रैक्टिकल करते हैं फील्ड पे, बराबर. प्रैक्टिकल एग्जाम भी रहेगा. देयर विल बी प्रैक्टिकल एग्जाम एंड थियरी एग्जाम. थियरी एग्जाम यू ऑल अवेयर ऑफ थियरी एग्जाम, राइट. 70 मार्क्स का पेपर रहता है थियरी पेपर. एंड बाकी के जो 30 मार्क्स है, 30 मार्क्स में क्या क्या आ जाएगा? देयर विल बी 10 मार्क्स ऑफ माइक्रो प्रोजेक्ट and 20 marks of class test 1 and average of class test 1 and class test 2. So it will be total 100 marks of subject. Okay.
फिर से मैं बोल रही हूँ, 70 मार्क्स का थियरी पेपर आएगा इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. देयर विल बी 70 मार्क्स थियरी पेपर एंड 20 marks is average of 2 class test and 10 marks is micro project. So there will be total of 100 marks. Okay, 70 marks है theory paper के, 20 marks है average of class test 1 and class test 2 के and 10 mark is micro project के. Okay, उसके अलावा और क्या दिया है, 25 मार्क्स है आपके एग्जामिनेशन के, जो एग्जाम ली जाएंगी आपकी 25 मार्क्स के लिए, जो प्रैक्टिकल है. कितने प्रैक्टिकल है, देयर विल बी 18 प्रैक्टिकल. उसमें से आपको मिनिमम 12 प्रैक्टिकल करने हैं, परफॉर्म करने हैं फील्ड पे, तो वो उसके 25 मार्क्स है. ओके, बाकी के जो 25 मार्क्स है, रिमेनिंग ऑफ 25 मार्क्स, देयर विल बी 12 प्रैक्टिकल्स इन योर सिलेबस जो आप फील्ड पे करेंगे. तो हर एक प्रैक्टिकल आपको लिखना है इन असाइनमेंट पेज. ओके, तो एक प्रैक्टिकल के 25 मार्क्स, वैसे ही 12 नंबर ऑफ 12 प्रैक्टिकल के एवरेज आपके कंसिडर करके वो 25 मार्क्स में से हम देंगे. ओके, तो आपका सब्जेक्ट टोटल कितने मार्क्स का हुआ, 150 मार्क्स. ओके, 70 मार्क्स का थियरी, the 20 marks का average of class test 1 and 2, 10 marks का micro project, 25 marks के एग्ज़ाम, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, एंड बाकी के जो 25 मार्क्स है तो वो पूरा जो जितने भी प्रैक्टिकल्स है उसका एवरेज. ओके, सो नाउ बेसिक, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बेसिक. This is very basic subject. Please listen to me carefully. पूरा बेसिक है. अगर आप कंस्ट्रक्शन जब तक आपको नहीं आएगा, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे. बेसिक है पूरा. बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कौन से मेथड यूज करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, हाउ मेनी मेथड्स फॉर द कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स. ओके, तो पूरा ध्यान से देखना. सब्जेक्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, देयर विल बी 6th unit in your syllabus. I will explain your syllabus of BCO. There will be 6th unit. Total unit is 6th. Okay. First unit is overview of building components. Overview of building components. कितने मार्क्स का है, वेटेज है उसका 8 मार्क्स. 8 मार्क्स के लिए आपको ये पूरा यूनिट के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में. देयर विल बी 8 मार्क्स, वेटेज है उसका 8 मार्क्स का. सेकेंड यूनिट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर. कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर 14 मार्क्स का वेटेज है. 14 मार्क्स का पूरा वेटेज है ये सेकेंड यूनिट का. Third unit is construction of superstructure. There will be 20 marks, minimum 20 marks of weightage in your question paper for this unit. Now the next unit is fourth, building communication and ventilation. Okay, fourth unit क्या है, building communication and ventilation. There will be 12 marks in your question paper. Minimum weightage of fourth unit is 12 marks. Okay, now the next unit is 5, building finishes. Okay, building finishes, there will be 8 marks, minimum 8 marks weightage in your question paper for unit number 5. Next unit is 6th unit and this is the last unit of BCO. What is 6th unit? Building maintenance. There will be minimum 8 marks of weightage. Minimum weightage of 6th unit is 8 marks.
ओके, इन फर्स्ट यूनिट हम क्या देखेंगे? ओवरव्यू ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। मीन्स जब हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि सब स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर है। सब स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे, सुपर स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। देर आर टू टाइप ऑफ structure. Okay, main two type of structure, substructure and superstructure. Now what is the definition of substructure? Substructure means below the ground level, below the ground level. And what is the superstructure? Superstructure means above the ground level. मतलब सबस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के नीचे हम कौन कौन से क्या कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स यूज करेंगे, कैसे कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रक्चर। कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सबस्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज सुपरस्ट्रक्चर? सुपरस्ट्रक्चर मीन्स अबो द ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल के ऊपर हम कैसे बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करेंगे, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, इट विल बी सुपरस्ट्रक्चर। ओके, तो उसमें हम क्या क्या देखेंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स। There are many different types of building components. So our unit 1 is overview of building components. Unit 1 में हम building components के बारे में देखेंगे. Next slide is क्या है? Overview of building components. उसमें main there are two topics. मेन जो टॉपिक है वो दो टॉपिक हमको देखने हैं। कौन कौन से टॉपिक देखने हैं? एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेकेंड टॉपिक इज बिल्डिंग कंपोनेंट्स। ओके, सो व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स? एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट 3 2005, एज पर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन उन्होंने क्या सजेस्ट किया है? नेशनल बिल्डिंग जो कोड है उसमें टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स में कैसे क्लासिफाइड किए हैं, क्या क्लासिफाइड किए हैं, टाइप्स क्लासिफाइड किए हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन विच आर लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, frame structure and composite structure. As per types of construction is load bearing structure, frame structure and composite structure. Okay, अभी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स तो देखा, लेकिन उसमें ये टाइप्स क्या है? टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी हमने देखा कि लोड, उसमें 3 टाइप्स ऑफ है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर। तो ये लोड बेरिंग स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, व्हाट इज फ्रेम स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज कंपोजिट स्ट्रक्चर? तो हम पहले डिस्कस करेंगे अबाउट लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज लोड बेरिंग स्ट्रक्चर? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, each wall is a structural member and weight of slab is carried by the walls and transferred to the foundation. What? जितने भी वॉल है, वॉल का वेट कहाँ पे आएगा? पहले तो पूरे स्लैब का वेट कहाँ पे आएगा? स्लैब मीन्स व्हाट? स्लैब मीन्स आपका जो टेरेस है, टेरेस, टेरेस को हम क्या बोलेंगे? स्लैब। जो टेरेस है, छत जिसको हम बोलते हैं, छत मीन्स स्लैब। पूरे स्लैब का वेट कहाँ पर आएगा? किसके ऊपर आएगा? वॉल के ऊपर, हर एक वॉल के ऊपर। ओके, रूम में जैसे कि आपकी बिल्डिंग है उसमें सपोज एक ही रूम है, तो एक रूम में मिनिमम 4 वॉल तो होंगी, तो 4 वॉल पे पूरे छत का मतलब स्लैब का पूरा वेट आ रहा है। ओके, अब स्लैब का एंड वॉल का पूरा वेट किसके ऊपर आएगा? किसके ऊपर आएगा? पूरा वेट आपका जो है वो पूरे फाउंडेशन तक जाएगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लोड बेरिंग स्ट्रक्चर।
Each wall is a structural member and weight of slab is carried by the wall and transferred to the foundation. That is called load bearing structure. Hence, below each wall, a foundation of increasing thickness is provided. Due to these, the load is spread over larger area at the foundation level. Okay. Now, what is frame structure? In frame structure, the walls are not structural members. They do not carry the weight of the slab. The weights of the slab is carried by the beams. The weights of the beams are carried by the columns which support them. The columns have footings to spread the load over greater area at the foundation level. That means in frame structure, क्या है फ्रेम स्ट्रक्चर? फ्रेम स्ट्रक्चर में ही ये नाम में ही है, जैसे फ्रेम, फ्रेम मीन्स कॉलम, बीम एंड स्लैब का पूरा स्ट्रक्चर. अबोव द ग्राउंड लेवल क्या कंस्ट्रक्ट करना है? कॉलम, कॉलम के ऊपर बीम, बीम के ऊपर स्लैब. तो उसको हम क्या बोलेंगे? पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर. स्लैब का जो वेट है वो पूरा कहाँ पर आएगा? बीम के ऊपर. बीम का जो पूरा वेट है वो कहाँ पर आएगा? कॉलम के ऊपर. एंड कॉलम का जो पूरा एंड स्लैब, बीम एंड कॉलम का जो पूरा वेट है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा? फाउंडेशन पे. अब ये फाउंडेशन क्या है? व्हाट इज फाउंडेशन? आपने ये कोई भी टर्म्स सुने नहीं है तो आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. व्हाट इज बीम, व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज स्लैब, व्हाट इज फाउंडेशन, ये सब वर्ड जो है ये आपके लिए बिल्कुल नए हैं. तो ये पूरे बिल्डिंग कंपोनेंट्स है. which are all the building components. Okay, ये फाउंडेशन. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज फाउंडेशन? Foundation is the lowest part of structure below ground levels which is in direct contact with the ground and transmit all the loads to the soil on which the structure rests. Now, what is composite structure? Composite structure is the combination of load bearing structure and frame structure. Composite structure क्या है? लोड कोई बिल्डिंग को, जैसे कि कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हमें करना है तो बोथ स्ट्रक्चर से हमने वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया. लोड बेरिंग स्ट्रक्चर से एज वेल फ्रेम स्ट्रक्चर से हमने वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया. दैट इज कॉल्ड composite structure. You got it? Three types of structure, three types of construction methods. क्या क्या types of method है, क्या क्या types of construction है? load bearing structure, frame structure and composite structure. अभी जैसे आप देखेंगे फिलहाल तो आपको कौन से टाइप के स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन मिलेंगे? फ्रेम स्ट्रक्चर. अभी जो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे, कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी साइट पे अगर आप जाएंगे और वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको कौन से टाइप का कंस्ट्रक्शन मिलेगा? फ्रेम स्ट्रक्चर से ही आपको पूरे कंस्ट्रक्शन, पूरे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा. फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे आगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोड बेरिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेम स्ट्रक्चर. It is very important question. Okay, now next topic is building components and their functions. Foundation, plinth, floor, walls, roofs, windows, doors, beams, columns, slabs, staircase, lifts, parapet, lintels. These all are the building components. In substructure, there will be foundation, plinth and plinth filling, and in superstructure,
What are the building components are there? Wall, partition wall, sill, lintel, doors and windows, floor, roof, slab, columns, beams, parapet, lifts, staircase. There all are the building components. ओके सो कौन कौन से टॉपिक देखे हमने आज यूनिट 1 में? क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर. ओके, सिर्फ लोड बेरिंग सिर्फ हमने अभी डेफिनेशन देखे हैं लोड बेरिंग स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर के. उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमने क्या देखा? बिल्डिंग कंपोनेंट्स. ओके, इन सब स्ट्रक्चर एंड इन सुपर स्ट्रक्चर कौन कौन से बिल्डिंग कंपोनेंट्स है वो हमने देखा. उसके डेफिनेशन एंड ब्रीफली हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, थैंक यू.